In photography, there is a reality so subtle that it becomes more real than the reality. And when it was said by Alfred Steeds, we all abide by the same. And I got stuck to this quote, and when I just wanted to have a little discussion on photography, this quote came in my mind, and hence I told you this. So if you also follow the same principle, and if you also follow the same path for in context with the photography, you have come to the right place. So hello and welcome. This is your host Himanshu Kaushik, and I hope that you all are very doing very good, fine, safe, sound, and happy at wherever you're taking this session from. So before we move on and learn a lot more about photography and what are the nitty gritties of the photography, we have our expert here with us. So I shall introduce you to our expert. Uh, we have Mr. Nimit Pauli, who is an assistant professor, research scholar, and academician also. And I just welcome sir in the session. He is actually working with Department of Fine Arts under the School of Journalism, Films and Creative Arts, lovely professional university. And his core area is focused on photography. Other than that, he's also been teaching basics of Photoshop and intercultural communication as well. Prior to this, he was working as travel coordinator in Kerala, event production coordinator in Bahrain, and as a photographer with multidisciplinary organization and corporates. He actually pursued his master's in journalism and mass communication from LPU only, and after that, his research interest in photography, visual communication, intercultural communication, and news media technology grew up, and hence he became the assistant professor. So he will be actually guiding us through the process, and we all are very excited, sir, to listen and to know more about the photography. It is very intriguing of a topic also. And with this, sir, I welcome you in the session, and I request you to please take over the screen. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was actually a great introduction, but I have done nothing as such. I'm just in my learning phase. I'm just still in my learning phase, and I believe every day is a learning phase. So yeah, progressively what happens is when I'm spending time with my students here, they actually come across with something new. So they also come and let me know like this is what is happening in the market these days, or this is the present trend in the market these days. So this also helps me out. So my main point or my main concern to all of you will be no matter what category or what genre or what course you're going for, it's always better to keep updating yourself, keep upgrading yourself with respect to books, knowledge, extracurricular activity, whatsoever it is. My like almost everything is said by Himanshu ma'am, so I don't want to say anymore like anything extra right now. But my name is Nivit Polly and I'm from Kerala, and I have been associated with LPU like for 5 to 6 years now, being a student and being a faculty. So I have seen both the phases of life in LPU. Uh, as ma'am said, I am teaching photography for the Department of Fine Arts, and it's been 2 years now that I have been teaching photography. And majorly, we are covering almost everything in the field of photography. So for say, uh, e-commerce, we are covering e-commerce, which includes product photography, food photography, fashion photography. We are focused on campaign photography. Again, if we come to travel based, we are covering street photography. We are covering nature and landscape photography. Other than that, if it comes to documentation, we have photo story, photojournalism, and otherwise we are providing the basic knowledge with respect to the editing part, which is essential in photography, right? So I'll just start as the name indicates. The whole webinar right now that we are going to like
going to attend is on the basics of photography. I hope I'm clear and audible to all of you people. Can I just get Yes, sir. a You're response? audible, sir. Okay, great. So, just give me one moment, please. Yeah. So I'll just start with, see, this is like the basic camera format. I mean, like what you can see in a camera. And I'm showing you specifically DSLR. The reason being, we are like using DSLR in our studio. So right now, according to the trend, according to the market or the industrial standards, we are, I mean, like the photographers these days are using mirrorless camera. But we, just because we are teaching the basics and we are like practicing on regular basis, we are not, you know, using mirrorless camera. Instead, we are using DSLR camera. So in the image, you can see there are few specific things which are mentioned. So what are those? Mirrors, which is inside the camera. Again, a mirror here, which reflects the image, right? Flash in some of the body. So say this is a camera body, I believe you can see. This is a camera body. So this is the portion of flash, external flash. This doesn't have a inbuilt flash, so we always go for external flash. I hope you can see this particular area, right? So mirror is inside the camera. I think we can just have a glance. Can you see? There's a mirror this side, right? So these are the basic things. I mean, the basic. Just give me 1 second, please. Okay, so these are the basic things which are inside, or the instruments which are available inside the camera. So as you can see, this part, the viewfinder. So this is the viewfinder, right? From where you can see. Likewise, the screen, which is mentioned here, the screen. So when you are using the screen, you cannot see from the viewfinder. When you are using your viewfinder, you cannot see from the screen. And screen is mostly used when it's getting difficult for you to get a click in a normal position or in a normal standard format, right? So you go for screen. Again, now this is the shutter button shown here. I missed that part. So for this camera, this is the shutter button, right? The shutter button. Again, the aperture ring is inside. This is the portion where you put your battery. This is the portion where you put your memory card. Like you have to store your photos, right? Once you click the photos, you have to store it. So the storage is done in the memory card, which is fixed here. So this is like the basic idea about the camera body. There are many things actually, but we cannot, like, you know, cover up the whole thing or the whole session in just 1 hour. So I'll just give you the basic idea, right? So we have three components. Like I'm talking about DSLR, but these are also available in mobiles also. What you can do is you can try it in your own mobile camera. So you have seen pro mode. मतलब सबके फोन में प्रो मोड होता ही है, ठीक है? आज के टाइम पे ऐसा कोई फोन ही नहीं है जिसमें मतलब प्रो मोड ना हो. तो प्रो मोड में तीन स्पेसिफिक चीजें होती है जो आपको ध्यान देनी होती है. एक है शटर स्पीड, जो यहाँ पे भी दिख रहा है. दूसरा है एपर्चर, जो आगे आएगा. और तीसरा है, उसको बोलते हैं हम आईएसओ. सो थ्री थिंग्स इन स्पेसिफिक. वन इज शटर स्पीड, सेकंड इज आईएसओ, थर्ड इज एपर्चर. और इन तीनों का अपना अपना एक फंक्शन है, ठीक है? और ये मैं आपको इसके एक्सप्लेन करते करते मैं इसको बताऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है करके, राइट? So shutter speed. What is shutter speed? Shutter speed is the length of the time a camera's shutter is open. यानी कि कितनी देर तक शटर ओपन रहेगा ताकि वो लाइट एंटर हो सके, ठीक है? कैमरा के सेंसर तक लाइट पहुंचने के लिए कितनी देर तक ओपन रहेगा, उसको हम लोग शटर स्पीड बोलते हैं. द लेंथ ऑफ द टाइम, द लेंथ ऑफ द टाइम, ठीक है? तो शटर स्पीड हमेशा टाइम के साथ मेजर किया जाता है. अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं. स्लो शटर स्पीड, एक एग्जाम्पल के तौर पे 1/25 दिया हुआ है. लाइक दिस इज द मेजरमेंट दैट यू कैन सी इन द कैमरा, राइट? एंड द फास्ट शटर स्पीड, इसका मेजरमेंट क्या दिया हुआ है? 1/125, ठीक है?
सो यहाँ पे एक इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है किस बेसिस पे 1/25 होगा तो ज्यादा लाइट आएगा, राइट, और 1/125 होगा तो कम लाइट आएगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे मोशन भी कैप्चर होता है, राइट। ये देखिए, आपको एक एग्जांपल के तौर पे शायद यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा हो तो अच्छी बात है। सो यू कैन सी, देखो 1/125 में इमेज डार्क है, लाइकवाइज 1/100 में थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है, 1/80 में इट्स गेटिंग ब्राइटर, एंड बाय द टाइम इट रीचेस 1/25 इसको हम बोलते हैं ओवर एक्सपोज्ड। जहां पे लाइट बहुत ज्यादा हो जाती है इसको हम बोलते हैं ओवर एक्सपोज्ड, राइट। तो ये आपका शटर स्पीड का और लाइट का कनेक्शन है। जितना ज्यादा आपका शटर स्पीड जाएगा उतना डार्क आपका फोटो आएगा, राइट। बट शटर का एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं ना फंक्शन भी है विच इज कॉल्ड एज मोशन। ठीक है, शटर स्पीड जो है वो मोशन को भी कैप्चर करता है। सी, शटर स्पीड एंड दी मूवमेंट। अब ये दो फोटो में आपको दिख रहा होगा कि एक में पानी का जो फ्लो है इट इज लाइक द इट सीम्स टू बी लाइक सिल्क, वेरी सिल्की, है ना, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़े से मतलब स्प्लैशेस दिख रहे हैं कि कैसे पड़ रहा है, कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज द मूवमेंट, ठीक है, कितना हार्श है, कितना सॉफ्ट है, ये इसमें मालूम पड़ रहा है, राइट। तो शटर स्पीड दो चीजें करता है स्पेसिफिकली, एक कितने टाइम के लिए लाइट का रिक्वायरमेंट है उतने टाइम के लिए द शटर रिमेन्स ओपन, एंड आपको मूवमेंट कैसा चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको अगर बताऊं तो मैं अपने ही फोटोज दिखा देता हूं जो मैंने खींचे हुए थे। जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। ये देखिए, अभी शटर का ही पूरा मतलब यहाँ पे एक गेम चल रहा है, राइट। सो द होल लाइक द होल सीन इज इन मोशन, जस्ट माय ऑब्जेक्ट हु इज इनसाइड द ऑटो इज इन फोकस, राइट। इसको हम बोलते हैं पैनिंग। इस शॉट को हम बोलते हैं पैनिंग शॉट। अब ये आप अपने अगेन मोबाइल में भी कर सकते हैं। प्रो मोड में जाके अपने शटर को 1/50, 1/30, 1/25 के रेंज में रखिएगा। पैरेलली आपको एपर्चर और आईएसओ चेंज करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। और जहां पे भी आपका गाड़ी का मूवमेंट जा रहा है, सपोज दिस इज suppose this is your vehicle or any moving object that you want to capture, right। ये मेरा कैमरा है, तो मैं अपने कैमरे के साथ मीन इस सब्जेक्ट के साथ अपने कैमरे को मूव करूंगा। आई होप यू कैन सी दिस। इस कैमरे के साथ आई मीन लाइक इस ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के साथ मैं अपना कैमरा मूव कर रहा हूँ, और जहां पे मेरे को सुटेबल लगा मैं वहां पे कैप्चर कर दूंगा। दिस वे यू कैन गेट योर पैनिंग शॉट, राइट। सो एवरीथिंग विल बी इन मोशन और आपका सब्जेक्ट फोकस में रहेगा, ठीक है। ये देखिए सेम चीज, मेरी कोशिश वही रही है, मैं अपने मतलब सब्जेक्ट के साथ अपने कैमरे को मूव किया हूँ और जहां पे मेरे को सुटेबल लगा वहां पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरा बैकग्राउंड पूरा मोशन में आ रहा है और मेरा सब्जेक्ट पूरा फोकस में आ रहा है, राइट। एक ऐसी ही जहां पे आपको बिना पैनिंग किए आप कर सकते हो वो है ऐसे सिचुएशंस। अब इसमें ज्यादा हैवी मूवमेंट्स नहीं है, बट देन द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको मतलब ज्यादा हेडेक लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑन व्हाट बेसिस, यू डोंट हैव टू मूव योर कैमरा अकॉर्डिंगली, यू जस्ट हैव टू बी स्टेबल। अब यहाँ पे सबसे सही तरीका और द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट दिस काइंड ऑफ पिक्चर और फोटोग्राफीज टू फाइंड अ स्टेबल सब्जेक्ट जो मूवमेंट नहीं दे रहा हो, राइट। एक स्टेबल सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए, उसको अपना फोकस रखिए और शटर स्पीड को एज आई सेड स्लो रखिए। तो उसके आसपास में, उस सब्जेक्ट के आसपास में जो भी मूवमेंट आएगा वो मोशन में आ जाएगा और सब्जेक्ट आपका फोकस में रहेगा, राइट, स्टेबल रहेगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और एनी डिस्टर्बेंसेस और एनी मूवमेंट, राइट। तो ये चीजें हैं जो स्पेसिफिकली हम लोग शटर के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक एक ये फोटोग्राफ आई थिंक यू शुड सी अगेन, ये एक ही बंदा है
just because he had a small movement of his neck, like he is playing guitar there or over there, उस टाइम पे जस्ट ही गेव अ स्मॉल मूवमेंट, वो स्मॉल मूवमेंट मेरे लिए बहुत बेटर हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे को मिल गया मोशन ब्लर एक ही सब्जेक्ट के अंदर में, ठीक है? सो यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो एज आई सेड, मैं रिपीट करता हूँ, शटर स्पीड जो आपका होगा वो कम रखेंगे तो आपको मोशन ब्लर मिलेगा, शटर स्पीड आपका कम रहेगा तो लाइट ज्यादा मिलेगा, राइट? शटर स्पीड आपका ज्यादा होगा तो डार्क होएगा फोटो, अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट, दैट इज अनदर स्टोरी, डार्क मिलेगा। एंड अगर आपका शटर स्पीड ज्यादा रहेगा तो आपका मोशन जो है वो फिक्स्ड मोशन आएगा। अब फिक्स्ड मोशन क्या होता है? लेट मी जस्ट चेक, ओके, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीज मोशन, ठीक है? यहाँ पे मेरा शटर स्पीड जो है वो ज्यादा है, इट्स अबव 250, ठीक है? और अबव 2 यानी 1/250 मैंने रखा हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है इनफैक्ट। तो जब इसने जंप किया, जो मेरा सब्जेक्ट था जो काइंड ऑफ एक्स गेम्स को फॉलो करता है, तो वो अपने साइकिल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तो जब वो जंप किया अपने साइकिल के साथ ही, मैंने उसी टाइम पे क्लिक किया एंड दिस व्हाट आई गॉट द रिजल्ट, ठीक है? ये पूरा शटर बेस्ड है। So this is like one of the main component in exposure triangle. Exposure triangle आपका कब फुलफिल होता है? जब आपका शटर, आपका एपर्चर और आईएसओ तीनों बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है? ये देखें यहाँ पे और एग्जांपल के तौर पे, पहला जो यहाँ पे दिखाया था स्लो शटर है, प्लीज ये मत भूलना, जब आपका शटर कम होगा तो सिल्की मूवमेंट आएगा, जब आपका शटर फास्ट होगा तो फ्रीज मूवमेंट्स आएंगे। अब यहाँ पे वही हो रहा है, ये देखिए सारे फ्रीज मूवमेंट्स हैं, इफ यू कैन सी, सारे फ्रीज मूवमेंट्स हैं ये, ठीक है? और यहाँ पे आप देखेंगे तो मोशन ब्लर में, bunch of books, like bunch of books will help you out. You just need to get a support. That's the main point. Where Right. you will where your camera will not have any kind of external uh, what you can say issues or thirst or push or something like that. हल्का सा movement भी फोटो को बिगाड़ सकता है, so it's always better to have a tripod. Tripod नहीं है तो बुक्स का हेल्प ले सकते हैं, 2-3 बुक रख के आप रख सकते हैं उसमें भी, लेकिन एक लिमिटेशन आ जाएगा आपको, मत लाइक पोर्ट्रेट में ही लेना पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग मोबाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल। if you are using DSLR, tripod is the best option, like best option. Very good question, sir. Thank you. And I hope Dr. Rakesh, you must have got the resolution of the query you've asked here. And meanwhile, sir, I'd request you to kindly share the screen. Okay, so these are like the basic settings that I always share with my students, but I'll go ahead, instead of shutter I'll go for aperture. So in aperture what happens is, see, the aperture of a lens is the diameter of the lens opening, Sir, is usually I'm controlled by very an, sorry to interrupt, sir, but your screen is not visible. Sharing the screen. I'm not. No, sir. And meanwhile, all the attendees, if you have any other query, you can ask in the chat box. Any query regarding photography, I know there would be many. And you can just ask, and we can allow you to talk to our expert also at the end of the session. We just want to know the context. You can write the context in the chat box so that we can allow you to talk. And I hope Abhay, Abhin, Agnik, Anugya, Avinash, Ayush, Guddu, you are listening to it and liking the session. And I think screen, yeah, it is visible. So screen is visible. Kindly share. It's okay now. Yeah, so kindly share the presentation or the PPT or Yeah. PDF.
So aperture is the second component in the exposure triangle, right? So shutter, it's the time for the opening, and the aperture is the amount or the opening itself, like कितना ज्यादा opening देना पड़ेगा ताकि उसमें light आ सके. शटर में कितने टाइम के लिए एपर्चर में कितना ज्यादा अमाउंट चाहिए. सो लाइक अगर f 1.8 है तो ओपनिंग अराउंड कितना होगा, राइट? फॉर से अगर f 1.8 मेरा एपर्चर है तो ये पूरा ओपनिंग होगा. बट एट द सेम टाइम अगर मेरा एपर्चर f16 है तो स्ट्रेट अवे वो इतना हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें अमाउंट ऑफ लाइट के ऊपर बात होती है कि कितना ज्यादा लाइट हमको चाहिए. सो एपर्चर लाइक if the aperture is less, that means f1.8, f1.4, f2, f2.5, f3.2, these are like low aperture. ठीक है, इसमें क्या होगा, ओपनिंग ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आएगा, राइट? एट द सेम टाइम जितना ज्यादा ओपनिंग रहेगा उतना ज्यादा डेप्थ मिलेगा. सो डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ फील्ड, वो बेसिकली इमेज के ब्लरीनेस को डिसाइड करता है. So आपने मोस्टली देखे होंगे. I'll show you an example also. Okay, मैं वही फोटो नहीं निकालूं शायद. एक मिनट. ओके, सो ये जो आप पीछे देख रहे होंगे, ये ब्लरीनेस जो है, ठीक है, ये और यहाँ पे हल्का और मतलब कंपैरेटिवली ब्लरीनेस है बट ज्यादा नहीं है. ठीक है, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड दैट यू कैन फाइंड इन फोटोग्राफ व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय दी और व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय दी एपर्चर. मतलब ये एपर्चर से ही कंट्रोल होता है. यहाँ पे शॉर्टर डेप्थ ऑफ फील्ड और लॉन्गर डेप्थ ऑफ फील्ड बोला हुआ है. वी जनरली से इट एज शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड एंड डीप डेप्थ ऑफ फील्ड. शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में ये इमेज इज द बेस्ट एग्जांपल कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ वो ही पर्टिकुलरली आपके फोकस में आ रहे हैं, राइट? और पीछे का पूरा बैकग्राउंड ब्लर है, पता भी नहीं वहां पे क्या हो रहा है करके, राइट? और ये आपका डीप डेप्थ ऑफ फील्ड है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइकवाइज आपका सब्जेक्ट विजिबल है, प्योरली फोकस में है, शार्प है, और पीछे के बैकग्राउंड में क्या हरकतें हो रही है वो विजिबल है. बट अगर आप एक लॉन्ग रन में देखें तो बेसिकली ये डीप डेप्थ ऑफ फील्ड में आता है. ये डीप डेप्थ ऑफ फील्ड में आता है. क्यों? क्योंकि मेरा पूरा सब्जेक्ट जो इस इमेज के अंदर है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो केबल हो, चाहे वो ये घर हो, चाहे ये छोटा सा मतलब जो छोटा सा दिख रहा है घोड़ा हो, राइट? आप कुछ भी देख लो, ये सब फोकस में आ रहे हैं, राइट? सो ये डीप डेप्थ ऑफ फील्ड है. और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड आपका कब आता है? जब आपका एपर्चर इंक्रीज होता है, राइट? सो f16, f22, f8, f16, f22, f32, इस सब रेंज में जाओगे तो आपका डीप डेप्थ ऑफ फील्ड आता है. और आपका जब लोअर डेप्थ लाइक लोअर एपर्चर रहता है विच इज f1.4, f1.8, f2, f2.3.2, f4.5, ऐसे जैसे इंक्रीज होगा, राइट? उस रेंज में जो भी आपका अमाउंट जो है लाइट का वो ज्यादा आएगा, प्लस आपके रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ऐसे आएंगे, राइट? The subject in focus and the background will be as blur as possible. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सेम चीज में आपको यहाँ पे रिपीट हो रहा है. यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे सी f16 होगा तो डार्क होगा फोटो, f1.4 होगा तो ओवर एक्सपोज हो जाएगा. बट ये इंडिविजुअली कंपोनेंट्स के बेस पे से बताया जा रहा है. अगर आप कलेक्टिवली इनको ऐड करेंगे तो शटर स्पीड और एपर्चर आपको इसी बेसिस पे बैलेंस करना पड़ेगा. और आपका पर्पस पे ये भी डिपेंड करता है. व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, यू वांट द ब्लरीनेस इन द बैकग्राउंड और द फोरग्राउंड, or you want a motion, you want to capture a motion in your photograph. So I'll repeat, motion होगा तो you will be using shutter speed and accordingly you will set your aperture. अगर आपको depth चाहिए तो आप aperture पहले सेट करेंगे और उस बेसिस पे अपना shutter सेट करेंगे, right?
अब यहाँ पे कुछ और चीजें बताई गई हैं उसको लेके। डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ द लेंस इज द जोन ऑफ शार्पनेस इन फ्रंट और बिहाइंड अ सब्जेक्ट एट विच द लेंस इज फोकस्ड। ठीक है, एज मेंशन, मतलब पहले जैसे हमने बताया था, सब्जेक्ट जो होगा वो अगर फ्रंट में है यानी कि फोरग्राउंड में है तो आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा, और अगर बैकग्राउंड में है तो आपका फोरग्राउंड ब्लर में होगा। ठीक है, ये चीजें डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर आती है। इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड, DOF मींस डेप्थ ऑफ फील्ड, ओके, इंक्रीजेस विद द डिक्रीजेस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, द रिलेटिव एपर्चर, मोर ओपनिंग ऑफ एपर्चर f1.8 टू f1.6, लेस डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो जैसे पहले बताया था, अगर आपका ओपनिंग पूरा इतना लाइक ओपन है तो आपका लाइट का अमाउंट ज्यादा आएगा, नो डाउट, लेकिन आपका फोटोग्राफ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट को छोड़ के सब ब्लर होगा, राइट। और जैसे ही आपका एपर्चर का क्लोजिंग कम हो जाता है तो लाइट का अमाउंट कम हो जाएगा, बट आपका जो आपका डेप्थ है वो बेसिकली डीप बन जाएगा। डीप यानी कि हर एक चीज फोकस में आएंगी उसके इमेज के अंदर जो भी है। ये जैसे एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। एपर्चर साइज शैलो, मतलब जितना छोटा ओपनिंग होगा उतना क्लैरिटी में मिलेगा, और जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना फोकस में, यानी कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के डिफरेंसेस को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, दिस वर द एग्जांपल्स दैट आई शोड यू अर्लियर। अब फाइनली हमारा तीसरा कंपोनेंट जो आता है वो है ISO, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड, राइट। मैं यहाँ पे अभी लेक्चर लेते लेते मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ इफ आई एम गेटिंग एनी क्वेरीज और नॉट, सो हिमांशु मैम प्लीज लेट मी नो इफ इज देयर एनी क्वेरी। सो ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, और ये क्या डिनोट करता है कि आपका जो इमेज सेंसर है वो कितना सेंसिटिव रहेगा लाइट के प्रति। ठीक है, हाउ सेंसिटिव द इमेज सेंसर इज टू द अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट। अब ये कैसे मेजर किया जाता है? ये मेजर किया जाता है 800, 1600, 3200 ऐसे नंबर्स में, जबकि स्टार्ट होता है ये 100 में, और आज के टाइम पे मिररलेस कैमरास में 50 से भी चालू होता है, and it goes beyond 12,800, 25,000 के ऊपर तक जाता है, 25,600 के आसपास तक जा रहा है ISO। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा चीज जो याद रखने लायक है या फिर समझने लायक है वो ये है कि आप जितना ज्यादा ISO बढ़ाएंगे, सो से दिस रेंज 800, 1600, 3200 एंड अबव, स्पेशली 1600 एंड अबव, तो आपके फोटोज में ग्रेन्स दिखेंगे। ग्रेन्स यानी कि थोड़ा मच्छर जैसे, वो भी मैं आपको एग्जांपल में नीचे दिखा दूंगा। और जितना आपका कम रहेगा, जितना ISO आपका कम रहेगा उतनी शार्प इमेज रहेगी। सो आई ऑलवेज सजेस्ट माय पीप्स, माय स्टूडेंट्स, to keep your ISO in between 100 to 200। in between कुछ होता नहीं है, either 100 और 200, राइट। ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट मैंने बोल के रखा हुआ है, बट आई हैव ऑलवेज ओपन टू माय स्टूडेंट्स आल्सो। मैं उनको ये भी बोल के रखा हूँ कि जहां पे आपको लग रहा है कि आपको ISO बढ़ा देना चाहिए वहां पे आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड एक्चुअली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, these are the things that you should these are the things that you should know कि मतलब इसका पर्पस क्या है। So, अगर आपको अपने फोटोज में ग्रेन्स चाहिए तो ऑब्वियसली लाइक इंक्रीज योर ISO, लेकिन आपको अगर अपना इमेज शार्प चाहिए तो कीप योर ISO एज लो एज पॉसिबल, राइट। अब हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जैसे आउटडोर शूट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग का जो ISO का अमाउंट रहता है वो मैं पर्सनली 100 200 में ही रखता हूँ, मैं उसके ऊपर जाता नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ तो आई गो फॉर 400 to 800, ठीक है। एट द सेम टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू इवेंट फोटोग्राफी, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन फॉर मी विद रिस्पेक्ट टू लाइट, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सो उस टाइम पे मैं 800 से 1600 तक भी गया हूँ, बट देन मैं आई डोंट गो बियॉन्ड 1600 बिकॉज आई डोंट लाइक इट पर्सनली, क्योंकि ग्रेन्स दिखना चालू हो जाता है, राइट। सो हाउ सेंसिटिव द इमेज सेंसर इज, ये आपका जो मेजरमेंट होता है या फिर जो सेटिंग होता है ये ISO के बेस पे होता है, ठीक है। लेस द ISO, शार्पर द फोटो, मोर द ISO, grains you will find in your photographs, right?
तो यहाँ पे आपके ओके, आई होप यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रहा होगा। ये देखिए 100 में शार्पनेस थोड़ा सा ज्यादा है, एज सुन एज इट रीचेस 30 to 100 यू कैन सी बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड फोटो आपको लग रहा होगा ये, और इसके बीच के रेंज में आप देख सकते हैं कैसे चेंजेस या वेरिएशंस आ रहे हैं। सो 1 शार्प, शार्पर, ठीक है, यहाँ पे भी चल रहा है 18, ये 800 से थोड़ा थोड़ा पिक्सेलेट्स या फिर ग्रेन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि आईएसओ आपका कम ही रहे। तो ये 3 कंपोनेंट्स अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आपका मतलब बहुत काम इजी हो जाएगा when you are using your mobile phone also in pro mode, ठीक है। प्रो मोड में 3 चीजें आपको जो ध्यान देनी है या सेट करनी है, व्हाट आर दोज आर आईएसओ, शटर एंड एपर्चर, राइट। तो ये हम लोग का ये सबसे बेसिक चीज है जो एक मेरे ख्याल से फोटोग्राफर को जानना जरूरी है, या फोटोग्राफी सीखने के लिए जानना जरूरी है, प्लस एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत जरूरी है, कंपोजिशंस में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सब चीजों में ये 3 चीजों का मेल, इन तीन चीजों का बैलेंस जो होता है इसको एक्सपोजर ट्रायंगल बोलते हैं, एक्सपोजर ट्रायंगल। और ये 3 जब तक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फोटोज में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज या कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस दिखेंगे। Sir, तो yeah, there's one question from Agni. So he wants to know, is the focus and aperture button the same? is the focus and Aperture button the same? I'm still not, I can Yeah, okay, I'll just post the question. Just a minute, sir. Yeah, it's there in the chat box, sir. the focus and aperture in phone you're talking, I mean in mobile you're talking about, or in camera? I'll tell you both ways. See, in DSLR or in cameras, when you set your aperture, it helps to give the depth, not the focus. Focus आपका कैमरे के अंदर है in phone. Fine, fine, fine. नहीं, एपर्चर आपका डेप्थ देगा, फोकस आपका स्पेसिफिकली एक एरिया को या एक सब्जेक्ट को फोकस देगा। डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए और लाइट प्रोवाइड करने के लिए एपर्चर आपके काम में आता है। फोकस मैनुअल हो सकता है, वो डीएसएलआर के बेसिस में बोल रहा हूँ, दूसरा ऑटो हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन्स हैव ऑटो फोकस, तो आपको फोकस को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप काम कर लेगा। एपर्चर आपका डेप्थ के लिए, आपको अपने बैकग्राउंड में ब्लरीनेस चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, वहां पे काम पे आता है एपर्चर। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir, you're clear, sir. And so there's another question from Rakesh. So he just wants to know, okay, Dr. Rakesh, so can you suggest some camera application from Play Store using which he can have all the access of the features of Pro mode? Personally, I have no suggestion right away because I don't use like mobile myself personally. Okay, Agnik, I'll come back to you. Wait, just wait. So yeah, the thing is, I personally don't use mobile, but what I can do is I can provide the list to Himanshi ma'am, and maybe if she can post it later on, so Yeah. it can help you out. Sure, sir. Sure, we'll do that. And so we have another question. It's from an anonymous attendee. He or she just wants to know what can be the best setting to shoot a video at the night. Okay, for night, again, if you're going for mobile, I think you should have some sort of support system with you so that you can get a clear image. Otherwise, वो blurriness या motion blur का concept आ जाएगा, आपके photograph में बहुत movements आएंगे. So if you're going for pro mode, always
go like below 1/50, 1/50 के नीचे में आप जाएंगे तो आपको लाइट का सोर्स मिलेगा। और ठीक है, आईएसओ आपका 800, 1600, 3200 के ऊपर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन बी वेरी स्पेसिफिक कि इसमें ग्रेन्स आने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप ओके हैं उसके साथ, ओके, ऑलवेज गो फॉर दैट। थर्ड चीज इज एपर्चर, जो अग्निक मेरे को बोल रहा है कि फोन में नहीं मिल रहा है। तो अग्निक, आई डोंट नो विच फोन यू आर यूजिंग, सारे फोन के अपने अपने सेटिंग्स हैं, तो आपके पास जो अवेलेबल है आप एटलीस्ट उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक डीएसएलआर में ये तीनों चीज अवेलेबल ना हो, ये हो नहीं सकता। मोबाइल फोन का देयर आर सर्टेन चेंजेस, आई मीन लाइक अभी जैसे मैं अपने फोन में भी देख ही लेता हूँ इसी बहाने। Meanwhile, students, if you have any other question, if you want to ask any other query or confusion, if you've had anything regarding the photography or the basics of that, kindly write in the chat box or in the Q&A box. We'll take them up. Okay, Agnik, I'll be with you. I mean, I'll go with you in the same way you are saying. मेरे पे white balance है, focus है, shutter है, ISO है, exposure value है और lens है, but मेरे पे भी aperture नहीं दिखा रहा है. So what we can do is we can check. Focus ही दिखा रहा है, यहाँ पे भी focus ही दिखा रहा है. Okay. Sir, there's one question from Guddu that we were actually having a discussion about. Please tell the difference between DSLR camera versus a normal camera, and which one is better and why? आज के टाइम पे नॉर्मल कैमरा का कोई कंसेप्ट है ही नहीं वैसे तो, क्योंकि नॉर्मल कैमरा कुछ है नहीं। सी आजकल के टाइम में है डीएसएलआर जो विथ मिरर होता है, और इनिशियल स्टेजेस में सीखने के लिए आई विल से कि मतलब इकोनॉमिकल है। और Right. अभी जो ट्रेंडिंग है, यानी कि जो अभी के मार्केट में चल रहा है, अभी के इंडस्ट्री में जो चल रहा है, वो है मिररलेस कैमरा। मिररलेस कैमरा में आपका मिरर नहीं है, बस यही डिफरेंस है। मेन चीज ये है, जो मिररलेस कैमरा है, दोस कैमरास आर मोर फास्ट, मतलब फोकस बहुत जल्दी पकड़ सकता है, मल्टी फोकस बहुत जल्दी पकड़ सकता है, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मिररलेस कैमरा में। अदरवाइज एक मतलब बेसिक्स जो है हम लोग नॉर्मली डीएसएलआर में ही सीख रहे हैं, या फिर सिखाते हैं, या कोशिश रहती है कि उसी में सीखें। और मिररलेस में मैं iPhone photos are better than Android. So yeah, maybe yeah, we can stop share and have the discussion about the queries. I think that would be better, isn't it? yeah, but this kind of questions, you know, I mean, these are very much what you can say, I mean, like मोबाइल फोटोग्राफी बेस्ड है, बट देन आईफोन, यार आईफोन है, क्या कंपटीशन करने का है? एंड्रॉइड है, यू कैन नॉट कॉम्पीट विद इट। आईफोन इज लाइक यू नो, दे हैव मेंटेन्ड इट सिंस द वेरी फर्स्ट मोबाइल दे हैव प्रोड्यूस्ड। मतलब मेरे को याद है वे बैक इन 2012 और 13 आई बिलीव आईफोन 4 मैंने देखा था अपने फ्रेंड के हाथ में पहली बार, और उस टाइम पे भी जो फोटोज उसमें लिए जाते थे और जो क्लैरिटी थी, और आज के टाइम पे भी जो फोटोज लिए जा रहे हैं और जो क्लैरिटी है, कोई कंपटीशन नहीं है। जो दे रहा है वो सैमसंग दे रहा है, लेकिन सैमसंग भी दे रहा है मतलब गैलेक्सी एस सीरीज 20, 21, 22 इस रेंज में। Right. यस 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 यस, मैं यही We've got the response of the अनुज्ञा, Samsung. Yeah, right. अनुज्ञा यही सेम चीज। जो कंपटीशन दे रहा है आईफोन को आज के टाइम पे, वो गैलेक्सी दे रहा है, सॉरी सैमसंग दे रहा है, और एस सीरीज में जो 20, 21, 22 है, ये सब दे रहे हैं। इससे पहले सैमसंग भी मतलब आई थिंक प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि भाई कुछ किया जाए ताकि हम कंपटीशन दे दें। बट वन थिंग दैट यू शुड नोटिस इज, जितना ज्यादा क्लियर फोटोग्राफ के पर्पस में अगर आप कैमरा यानी कि फोन बिल्ड कर रहे हैं, वो उतना एक्सपेंसिव होते हुए जा रहा है। राइट मतलब ये सारे फोन्स अगर आप देखोगे तो 1,20,000, 1,40,000। मैं पर्सनली
मैं Okay. आता हूँ सर, मैं आपके पास आता हूँ। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 1 लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फोन में, तो इससे बढ़िया है कि आप मतलब सीधा अच्छा खासा एक मिररलेस ही उठा लो। सोनी अल्फा सीरीज, बहुत अच्छे अच्छे कैमरास मिलेंगे विद गुड लेंस। अभी जैसे एक ये लेंस है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लेंस 7200, बिकॉज ये बहुत मल्टीपर्पस है, बहुत ज्यादा मल्टीपर्पस है। मतलब इसमें पोर्ट्रेट भी मैं खींच सकता हूँ, इसमें मेरे स्ट्रीट भी आ जाते हैं, मेरा लैंडस्केप भी खींचा जा रहा है मुझसे, है ना। तो ये अकेला लेंस एक्चुअली 2-2.5 के आसपास पहुंच जाता है, 1.5 से 2 के आसपास में पहुंच जाता है ये लेंस, ठीक है। बट आपका जो, जैसे सर ने अभी एक कैमरा के बारे में पूछा हुआ है, D3100, दिस लाइक बेसिक मॉडल ऑफ निकॉन, बट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज सर निकॉन में एक स्पेसिफिक चीज है, अगर आप कभी ट्राई करेंगे तो उसमें कलर स्प्लैश मोड है, ठीक है। ये आपके कैमरा मोड्स में है, कैमरा मोड्स में आता है, उसमें एक कलर स्प्लैश मोड आएगा। कलर स्प्लैश मोड में आप स्पेसिफिकली एक कलर को चूज करके बाकी सारे इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। Right. So thank you. इज And इट, नो मेरे मतलब यार बीच में अटक गया था इसलिए मैं थोड़ा सा, ओके। okay, okay, okay. Yeah. Okay. So you were So saying D3100 में सर मतलब the point is that this is like one of the best cameras to start learning photograph. Once you know the whole scenario or the whole settings of your camera, you can upgrade yourself or you can upgrade your camera along with it. 50 mm lens I will always suggest, ये specific इतना ही है, बस इतना सही होता है 50 mm lens, ठीक है। I hope ये visible है शायद, yes, okay. sir, it is. It is. The 50 mm lens, this is one of the best lens personally which I believe, because portraits के लिए this is best. बहुत ज्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा इसको इसके थ्रू, और मतलब क्रिस्प, एकदम क्रिस्पी पिक्चर्स हैं। एपर्चर इसका 1.8 तक जाता है, सो विच इज द बेस्ट पार्ट, एंड इकोनॉमिकल है, लाइक 10,000 11,000 के अंदर में मिल जाएगा, बेस्ट। अदरवाइज सर आजकल एक्चुअली मार्केट में बहुत ज्यादा अपग्रेडेड सिस्टम्स आ चुके हैं, सो इफ यू आर रियली कीन, आई थिंक आपको, आप प्रैक्टिस बिल्कुल करिए 3100 में, बट थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन ले लीजिए, क्योंकि अब इसका प्रोडक्शन भी काफी हद तक बंद हो चुका है। सो लेटर ऑन इट विल बी अ ट्रबल फॉर सर्विसिंग एंड ऑल, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली, मतलब सीधी सीधी बात। सर आई वांटेड टू नो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सेंटर वेटेड फ्रॉम फ्रेम एवरेज एंड स्पॉट मीटरिंग बटन, एंड शुड बी ऑलवेज कैप्चर फोटोज, ओके। सो मैं पहले इसका बताता हूँ, शुड बी ऑलवेज कैप्चर फोटोज इन रॉ। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि 4-5 साल बाद भी अगर आप फोटो खोलेंगे ना, like when you try to open it or when you want to open it, it will be opened अगर आपके पास रॉ फॉर्मेट है तो। सो जैसे नोकिया का होता है तो वो .NEF में आता है, कैनन का है तो वो .CR2 में आ रहा है, आई थिंक सोनी का है तो ARW आता है। बट दिस आर दी रॉ फॉर्मेट्स जो आपके कैमराज में अवेलेबल हैं। अगर आप रॉ में लेते हो तो ये है, लॉन्ग रन में इट विल ऑलवेज बी देयर विथ यू, लाइक अगर आप ओपन करना चाहेंगे तो ओपन हो जाएगा, झिझकेगा नहीं। बट JPEG फॉर्मेट्स में बेसिकली क्या प्रॉब्लम होता है कि वो आपका मतलब 1 साल 2 साल 3 साल में मतलब एक पॉइंट में आके फोटो करप्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो ये मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि फोटोज या ऑलवेज गो फॉर JPEG प्लस रॉ, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में अगर आप सारे अपने JPEG डिलीट भी कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आपका रॉ फाइल जो है आपके साथ सपोर्टिव रहेगा, आपके साथ रहेगा हमेशा, है ना। और बाकी सेंटर वेटेड, फेम एवरेज, स्पॉट मीटरिंग, ये सब मैं बताना चाहता हूँ, बट जितना टाइम हमारे पास है इस टाइम में मैं ये सब कंप्लीट नहीं करूंगा, बिकॉज दिस आर लाइक वेरी मच a topic which you are supposed to know in depth, Right. ठीक है। So तो maybe we आई, can have a different webinar altogether for all these topics. Like we can schedule different webinars for this. Sir, there's another you question. should use it sir, you should use it. Actually I can show you one specific picture just for an example. Hmm, Color splash mode.
Meanwhile, So attempting. can you see this? मेरा पूरा image black. Is it visible? No, sir. You're not sharing the screen. You're not sharing the Okay, screen. okay. Just give me 1 second, please. Yeah. So is it visible now? Yes, sir. It is. It is. तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं पूरा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन जहां जहां पे भी ब्लू है वो पूरा आ रहा है. लाइक द पॉटर गाय हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट, पीछे जो एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा आपको एशियनेट ब्रॉडबैंड का, वो ब्लू कलर दिख रहा है. अदरवाइज पूरा इमेज मेरा ब्लैक एंड व्हाइट है. लाइकवाइज सी मेरा पूरा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन जहां पे भी ब्लू का प्रेजेंस है वो कैप्चर हो गया है. जैसे कि ये साइन बोर्ड हो गया, ये ऑटो का कवर हो गया, सेम चीज जहां जहां ब्लू है वो कैप्चर हो गया. ब्लू यहाँ पे ऑटो का ब्लू, सेम कवर्ड ब्लू, अगेन सेम थिंग, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट, और मेरा जहां पे ब्लू का प्रेजेंस है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू का प्रेजेंस है. ये देखिए ये पूरा इमेज पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है. बस इस गाड़ी का एक पर्टिकुलर ये एक स्ट्रिप्ड एरिया जो है ब्लू में है, वो अकेला ब्लू में आया हुआ है. ठीक है. सो ये बहुत मतलब सर इसके अलावा भी बहुत फंक्शंस हैं हमारे निकॉन के कैमरा में जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर सेटिंग्स के साथ या एक पर्टिकुलर क्या बोलेंगे अपने एक पर्पस के साथ हम लोग इतने इजी हो जाते हैं या फिर कंफर्टेबल होते हैं कि हम लोग बाकी चीजें एक्सप्लोर करना प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं. तो आई होप अगर आप वो चीज थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा पूरे इसको लेके. So there's one last question, or maybe the last suggestion we can have from you is, what do you want to suggest to all the attendees if they are beginner? So this question from, I'll just name Abhin Thomas. So what camera would you suggest for a beginner to start with? I will always say start with your mobiles. Okay. सीरियसली मतलब एक बार कंपोजिशन आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. सो मैं ना मतलब थोड़ा सा ऐसे फोटोज मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है अभी शायद ना. Right. So basically, I think we're having a discussion, right? So ओके नहीं हम डिस्कस करते रहते हैं बिल्कुल, मतलब विदाउट एनी फेलियर. आई जस्ट वांट टू शो फ्यू yeah. थिंग्स. आई मीन दिस विल हेल्प अविन आल्सो. सो ये मैं मेरा सिर्फ एक ही कहने का पर्पस है, वो ये है कि पहले अपने मोबाइल फोन में ही ऐसे बेसिक बेसिक चीजें थोड़ा सा देख लो कि मैं शटर के साथ कैसे मोशन कैप्चर कर सकता हूँ. सो दिस इज फ्रीज मोशन राइट. मैं ये अपने मोबाइल में कैसे लिखता हूँ, मैं सिंपल से पैटर्न्स को, लाइंस को कैसे अपने मोबाइल में कंपोज कर सकता हूँ प्रो मोड में ही. भले अपर्चर नहीं है कोई बात नहीं, जो है उसको तो यूज करो कम से कम. यूज योर शटर, यूज योर आईएसओ, यूज योर फोकस. क्योंकि एज मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने जैसे बताया था उनके फोन में अपर्चर नहीं है, मेरे फोन में भी अपर्चर नहीं है. तो माइन इज रेडमी में अपर्चर नहीं है. तो जो है वो तो मैं यूज करूँ. मेरे पे एक्सपोजर वैल्यू है मैं वो यूज कर सकता हूँ, मेरे पे शटर स्पीड है मैं वो यूज कर सकता हूँ, मेरे पे आईएसओ है मैं वो यूज कर सकता हूँ. तो वो यूज करके मैं कंपोज कैसे करूंगा, ये चीज अगर हम लोग एक बार बेसिकली सीख लेंगे या इसका बेसिक सीख लेंगे, तब मैं बोलूंगा कि आप लोग अपने कैमरे में आइए. और कैमरे में जब आओगे तो मेरे को सारे इसका तो नहीं पता है, बट जैसे अगर आप कैनन लेंगे तो कैनन में 80D आई विल से इज अ गुड कैमरा टू स्टार्ट विथ. कैनन 80D DSLR ही है. निकॉन है तो निकॉन 200 है या 5300 है, आई थिंक ऐसा एक सीरीज है निकॉन 5300. ठीक है, ये एक अच्छा मॉडल है बेसिक्स के लिए. जैसे सर डॉक्टर सर थे हमारे, उन्होंने बताया कि उनके पास 3100 है. पुराना मॉडल है बट इट्स अ गुड कैमरा टू स्टार्ट विथ. आज के टाइम पे अवेलेबल मेरे ख्याल से शायद नहीं होगा, बट 5200 और 5300 ये मेरे निकॉन में अवेलेबल है. सोनी का अल्फा 6 सीरीज अच्छा है, बट वो थोड़ा सा बजट में मतलब बढ़ जाता है, थोड़ा सा महंगा है कंपैरेटिवली इफ यू सी. ठीक है. सो दिस आर दी कैमरास दैट यू कैन स्टार्ट विथ. ठीक है. फ्रेमिंग मतलब फ्रेमिंग में क्रॉपिंग आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे कंपोज कर सकते हैं, कितना टाइट फ्रेम रखना चाहिए, फोकस कहाँ पे आना चाहिए, प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी चाहिए, ये सब चीजें थोड़ा सा एक्सप्लोर करो. सेंटर वेटेड होगा तो कैसे हो सकता है, फोटो अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें बैलेंस है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं,
दिस आर पार्ट्स ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। So, ऐसा फ्रेम विद इन फ्रेम, अब ये कंसेप्ट जो है फ्रेम विद इन फ्रेम, मेरा मेन फ्रेम कौन सा है जो कैमरे का है, वो बाहर का ये आउटर बॉर्डर है, राइट। और मेरा दूसरा फ्रेम कौन सा है, जो यहाँ पे ये दरवाजा बना हुआ है, राइट। और इसके अंदर में मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, दिस टूम और द आर्किटेक्चर, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम विद इन फ्रेम। तो ऐसे कंपोजिशंस थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लो, राइट। इस कंपोजिशन के बाद में फिर प्रोग्रेसिवली कम टू योर come to DSLRs, and if you are financially sound, then go for straight away go for mirrorless cameras, it's okay, ठीक है। These are the few photographs that I can like that I am showing you just for an example कि आप कैसे चीजों को कंपोज कर सकते हैं। ये मोशन ब्लर का कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, ये सेंटर वेटेड है अगेन। अब मेरा यहाँ पे देखो ये पिक्चर शार्प नहीं है बिकॉज मेरा फोकस आंखों पे आना चाहिए था, वो आंखों पे नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें ये सब विद प्रैक्टिस ही आएंगी। पहले कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिल द फ्रेम, पैटर्न, इसको पैटर्न बोलते हैं। बहुत सारे आलू का फोटो आप अगर क्रॉप करके ले लेंगे तो वो पैटर्न बन जाएगा, बहुत सारे प्याज का क्रॉप करके ले लेंगे तो वो भी पैटर्न बन जाएगा। मैंने शेल्स के लिए लिए तो ये पैटर्न है मेरा, बट मैंने फिल कर दिया फ्रेम को, ठीक है। मोशन ब्लर आपका पैन शॉट जिसको बोलते हैं हम लोग, पैन शॉट, ठीक है। लैंडस्केप, अब ये थोड़ा सा वाइड है, ये थोड़ा सा जूम्ड है, ठीक है। सेम फोटोग्राफ क्रॉप्ड एंड जूम। लेयर्स, इसमें लेयर्स का कंसेप्ट है। लेयर्स क्यों, क्योंकि आपका पहाड़ों का लेयर आ रहा है, पेड़, लेयर, लेयर, पीछे का लेयर और आगे एक लेयर हल्का सा, राइट। सेम चीज, लेयर्स लेयर्स लेयर्स, ये आपका लेयर लेयर और यहाँ पे कोरा पूरा भर गया है, तो ये लेयर्स में आते हैं। दिस आर लाइक काइंड ऑफ कंपोजिशंस और पार्ट ऑफ कंपोजिशन। लाइन और पैटर्न, पैटर्न क्यों, क्योंकि आपको ब्रिज का ये एक पैटर्न दिख रहा है इसमें। लाइन क्यों, क्योंकि इसमें एक लीडिंग लाइन जा रही है, लाइन के कंसेप्ट इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, और ये नेचर लैंडस्केप में आता है ऑब्वियसली। लो एंगल फोटोग्राफी, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ में जो आप फोटो खींच रहे हैं वो लो एंगल होगा, ऊपर से आप जब नीचे की तरफ में लेंगे वो आपका हाई एंगल होगा। ऐसे ऐसा, ये देखो ये लो एंगल है, लाइंस है, पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये सब कंपोजिशन के पार्ट्स हैं। लाइन, अगेन लाइन वाई, यहाँ से चालू हो रहा है डायगोनल लाइन, इनफैक्ट यहाँ से चालू हो रहा है और कंटिन्यूटी में इसका जो बार्ब वायर्स है वो ही आगे क्लोजर दे रहा है, राइट। ये आप मतलब समटाइम्स ब्रेक द रूल्स, कोई जरूरत नहीं है कि आपको क्या बोलते हैं रूल ऑफ थॉट फॉलो करना है या फिर सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए वहां पे होना चाहिए। अगर आपको देखने में प्लीजिंग लग रहा है तो स्ट्रेट अवे शूट इट। लाइकवाइज पैटर्न, लाइन, क्रॉपिंग, ये क्रॉपिंग बेस्ड है फोटोग्राफ। पैटर्न, क्रॉपिंग, लाइन, पैटर्न, ठीक। फ्रेम विद इन फ्रेम, सेम चीज। मेरा आउटर लेयर जो है, आउटर फ्रेम जो है वो मेन फ्रेम है, और ये जो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये मेरा इनर फ्रेम है। तो फ्रेम विद इन फ्रेम, और ये मेरे मेन सब्जेक्ट्स। लाइन, पैटर्न, पैटर्न, ये लैंडस्केप बेस्ड है थोड़ा। पोर्ट्रेट, मोशन। सो अल्टीमेटली व्हाट आई विल से इज स्टार्ट विथ योर कैमरा, आई एम लाइक मोबाइल। उसके बाद प्रोग्रेसिवली जब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मेरा हाथ थोड़ा साफ हो रहा है, मैं सेटिंग्स थोड़ा सा कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मेरा कंपोजिशन एक थोड़ा सा बेटर हो रहा है, उसके बाद आप ये DSLRs में आ सकते हैं। एंड एज आई सेड, इफ यू आर फाइनेंशियली साउंड देन गो फॉर मिररलेस कैमरा स्ट्रेट अवे। सोनी के अल्फा सीरीज, अल्फा 6 सीरीज से आप चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Gudu, yeah, I'll be obliged to see. Fujitsu I have never tried, Agni, so I won't suggest you personally. I'm so sorry. Fujitsu I have never, like, I haven't tried personally. But if you have exposure, if you think those are giving better results, you can always go for it. मेरा एक मानना है, as long as we are in India
ऐसे ब्रांड्स को चूज करो जिनका सर्विस सेंटर अवेलेबल हो, एटलीस्ट नॉट एवरीवेयर बट देन एटलीस्ट इन द प्लेसेस जहाँ पे दे आर सपोज टू बी देयर, लाइक एटलीस्ट इन द मेजर मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, यू नो, चंडीगढ़. तो इन सब जगह पे भी अगर हो, आई थिंक यू कैन गो फॉर इट. अदरवाइज बिना सर्विस सेंटर के लेना थोड़ा सा रिस्की है. आई एम नॉट सेइंग कि मतलब it will create issues, but then if it happens you should have always have a backup to cover it. ठीक है. और one thing that I can suggest you to improve your photography is there's a channel called as Art of Photography, the Art of Photography in YouTube. ठीक है. It's very amazing channel. I think you should watch it because the blogger himself is providing a lot of information with respect to composition, with respect to the renowned photographers, with respect to the latest trends in the market, right? So ये चीजें आप थोड़ी सी follow कर सकते हैं. Manchu ma'am, anything else? Yeah, I think so. We're done with the queries now. Thank you, and it's already the time also. I think we're done. And thank you so much, sir, for coming in, for joining us here, and for telling all the students about the basics. And they, I think, with the queries they've posted, they've really enjoyed the session. And to all the I wish this kind of sessions can happen yeah. in offline mode actually, you know, because that is more interactive. Here it's more like, you know, I'm talking to myself, you know. Sure, sir, maybe we can have like I mean, all the students can come in, can join us here in the university, and then we can have all the session. And at Yeah. last, I want all the students to know also that the session will also be uploaded on YouTube, and I've mentioned the link in the chat box as well. I am just sharing it once again. You can find the link of the channel. You can explore the videos. This will be uploaded by tomorrow, I guess. So you can just rewatch the session if you want. And with this, sir, I take your permission to wrap the session up. Shall I? Thank you. Thank you so much for this wonderful session. So pleasure is all ours, and of course all the attendees. And I also want to thank attendees that you've joined here and you've given your interaction, you've given your questions, your inputs. This is all appreciated. So maybe we meet physically in the university, and if not, then in the next webinar. Until then, stay safe, stay healthy, and thank you so much for joining in. Thanks a lot. Thank you. Thank you.